Study new chapter. Our 2 chapters completed in mathematics. Okay. Today we will study chapter 3rd, maths. Can you tell me what is the name of the chapter? What is the name of the chapter? Chapter 3rd, open everyone. Understanding quadrilateral. ठीक है, understanding quadrilateral. So can you tell me what is quadrilateral? We will discuss about the quadrilateral. Quadrilaterals. So first we will tell you about the quadrilateral. सर Yes. वॉइस रुक रुक के आती है। अपने आप को सभी लोग म्यूट करके रखिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। अब वॉइस ठीक है? अब हेलो हेलो, यस सर आने वॉइस आर क्लियर? Everyone study it very clear way. Okay, and Yes, give sir. give attention in this. What is quadrilateral? So first I will tell you about the figures. What is quadrilateral? This is quadrilateral. How many sides it have? It has 4 sides. 1, 2, 3, 4. Okay. All these sides are closed, attached to each other. This is called quadrilateral. Okay. Quadrilaterals are many types, but first I will tell you the definition of the quadrilateral. What is called quadrilateral? A figure which is made by made by 4 sides. A figure which is made by 4 sides is called a quadrilateral. ठीक है बेटा, ऐसा फिगर जो 4 साइड से मिलकर बना होता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ये कैसा है? क्लोज है। तो डेफिनेशन अपनी होगी ए क्लोज फिगर। यहां पे आप लोग क्लोज लिखिएगा, ए क्लोज्ड फिगर which is made by 4 sides, 4 line segment is called a quadrilateral. इसको अनदर तरीके से भी लिख सकते हो आप, एक दूसरी डेफिनेशन देखिए, आप लोग लिखिए इसको, ए क्लोज्ड फिगर made by 4 line segment is called a quadrilateral. ठीक है, a closed figure made by 4 line segment is called a quadrilateral. Okay, now we will study the types of quadrilateral. Types of quadrilateral. Types of quadrilateral. Types of quadrilateral. Number 1, first type, what we have to do? First we will see that rectangle. This is the first type, rectangle. Second type is square. Second type is square. Third type is rhombus. Fourth type is
kite. 5 type is rectangle, square, parallelogram. ठीक है. All these are the types of quadrilaterals. Okay, we will discuss briefly about this. आप लोगों ने समझा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. ऐसा फिगर्स जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, बट देयर आर मेनी टाइप्स. कोई ऐसा बना होता है, ठीक है. इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग. इसको अपन ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू. इफ यू अंडरस्टैंड इट, then your geometry portions as well as your concept about the figure will be clear. So you all have to write in your copy before starting the chapter 3rd. You have to write the definition of quadrilaterals and their types. Okay, let us discuss one by one. Sir, Hello, let us we will discuss. हाँ, क्या बोल रहे बेटा? सर रोम्बस के बाद क्या लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा. रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम. I have to. वो लगता नीचे रखी है. Everyone हाँ, mute yourself. नीचे. Everyone mute yourself. Okay, all of you have written. All of you have written. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will discuss the property of Quadrilateral. quadrilaterals. Okay, each type quadrilaterals have different property. So let us we will discuss. First we will see the property of rectangle. ठीक है. What is the property of rectangle? Then we will see the property of square. Then we will see the property of this is first, this is second, this is third, parallelogram. ठीक है. Let's we will discuss rectangle. Rectangle कैसा होता है देखिए बेटा. ये रेक्टेंगल ऐसा फिगर होता है. ठीक है. फर्स्ट यू मेक द फिगर. इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ये अपोजिट साइड्स, इसका ये इक्वल का साइन है. दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन. ओके, सो दिस इज 6 सेंटीमीटर. नहीं पंखा चालू कर दे. So it will be also 6 centimeter. This is 3 centimeter. So it will be also 3 centimeter. Means opposite sides are equal. ठीक है. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. Yes, sir. हेलो. हेलो Yes, sir. बेटा, आपकी वॉइस कैसे है? Yes, sir. एक मिनट बेटा, 1 मिनट है ना. Yes, sir.
हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? यस सर, आ रहे लगी आ नहीं रही। लगी सर, थोड़ा भी गए हैं, थोड़ा काम है, आ रहे हैं अभी। क्या पढ़ रहे थे? रेक्टेंगल। हाँ यस सर, तो 25 रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डिफिनेशन हो गई। डिफिनेशन ऑफ डन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या आती है? जो फ्रंट नो की सर। जो फ्रंट की है वो बराबर सामने इक्वल होंगे। देखो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है ना? रेक्टेंगल का यस सर। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इसका पेरीमीटर भी होता है। व्हाट इज द पेरीमीटर फॉर्मूला ऑफ द रेक्टेंगल? 2 into length plus width. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है Breadth. ना? ब्रीथ। अब यहाँ पे जैसे 3 3 है तो एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे इसका? एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ 3 है और ब्रेड्थ कितनी है? 6, है ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया? 3 इंटू 6। यस सर। 3 इंटू 6 हो गया, कितना आ गया? 3 इंटू 6। सर 3 इंटू 6, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 6 18, 18 है ना? 18 सर 18। ठीक। 18। उसके बाद जैसे अब लिखोगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो उसमें क्या है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर लो, 3 प्लस 6 कितना हो गया? 9, 3 यस सर, 3 6 9। है ना? और उसके बाद उसमें भी क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई 2 का कर दोगे। 2 इंटू रहता है ना, क्या रहता है? 2 इंटू रहता है ना, 2 इंटू लेंथ। 18। हाँ, तो वो भी 18 आ गया ना? आ रहा है? यस सर। अब जैसे स्क्वायर है, समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया ना? आ गया आ अब गया। जैसे स्क्वायर रहता है, तो स्क्वायर में क्या रहता है? स्क्वायर की जो जो 4 साइड्स हैं वो सभी इक्वल होती हैं। स्क्वायर में जितनी भी साइड्स होती हैं वो सभी क्या होती हैं? इक्वल। इक्वल होती हैं। ठीक है, ऑल स्क्वायर साइड आर इक्वल। यस है ना? ऑल साइड आर हाँ। इक्वल। इक्वल। ठीक है, ठीक है। और क्या Yes, रहता है? ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? सभी जैसे यहाँ पे 3 6 है, 3 6 है, तो वहां पे क्या रहेगा? सभी 3 के रहेंगे। सभी क्या रहेंगे? 3 के। सभी 3 रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बना दूं, जैसे ये अगर बन गया तो ये जैसे स्क्वायर हो गया अपना, ये 3 का वो भी 3 का वो भी 3 का। है ना? तो ये कितना? देखो ये सभी बराबर हैं, ये सभी ऑल के साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर। Side into side. 5 3 लिखा है Side. एरिया। साइड फिर इनटू साइड। हाँ, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे कितना दिया है? साइड 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना होगा? Side into side. वो तो ठीक है, तो साइड कितना दिया है स्क्वायर का? 3 दिया है ना? That's 3. हाँ, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज द 3 स्क्वायर ऑफ 3? 3 3 जा 9। 9। तो बोलो ना। तो स्क्वायर ऑफ 3 इन 9 मींस इसका स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? एरिया। ठीक है, इस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 9। अब इसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का क्या होता है? स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर। 4 into side. 4 इंटू साइड। साइड कितना दिया हुआ हमको? Sir 9. साइड मीटर 3 दिया है ना? यस सर। 9 तो वो एरिया निकाले आप, है ना? 9 जो है वो तो आप एरिया निकाले हैं किसका? स्क्वायर का। बट यहाँ पे आपका क्या हमने बोला? पेरीमीटर बोला है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है ना? Yes, sir. साइड यस सर। 4 है। अब साइड हम लोग हमको कितना दिया हुआ है? साइड गिवन Sir 3. 3. 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर, है ना? 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो
समझ में आया रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके रुको बेटा, तो 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। कौन निकलेगा? हेलो सर। सर लेफ्ट हो गए। ओरिजिनल सर पागल। देखा नहीं ना। लक्ष्य का मतलब जानता हो? अभी हम काम कर रहे हैं। हेलो। हेलो हेलो। शुभम पहले अपना माइक ऑन कर ले फिर बोले हेलो। कहाँ देख रहा है? माइक ऑन है मेरा। कितनी आवाज कर रहे हो तुम लोग? आवाज आती है, तुम्हारी गलती है। हेलो सर कहाँ गए? लेफ्ट हो गए सर। नहीं वो जुड़े। तो कहाँ चले जाते हैं यार? आप बता। अंकुश लगता लेफ्ट हो गए। कहाँ अंकुश तक तो कहाँ है अंकुश भी है। भाग रहे यार। हम हाँ। तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा आवाज आ रही। सर क्योंकि पलंग खिसका रहा हूँ इसलिए आवाज आ रही है। किसके यहाँ गाना बज रहा है? का अरे यार हाँ भी रोज मदरसा लगाते हैं। जय। क्या? हाँ हाँ बोल बोल आज बोल। फ्राइडे है आज। जय। हाँ बोल बोल। मारूंगी एक राह पट्टू मेरा नाम बजाए। देख। तेरे को मारूंगी। सुनाई नहीं दे रहा तेज से बोल। सच बच गया। का प्लस माइनस लिखे जीरो देख ले। ये हाई लिख के कौन ने डाला है यार?
हमारे पास हेलो सर। अब देख हेलो कौन? हम बोल हम बोलते नहीं जानते। नहीं जानते। सर अभी सुनेंगे तो जानने लगोगे सबको तुम लोग। दादी का फोन लगा कहाँ थे? ओम थोड़ी अच्छे से बात कर। कहाँ डायरेक्टर से जुड़े हैं क्या? अरे क्या यार पता नेटवर्क क्या पता बैटरी सर खत्म हेडफोन हो लगाए नहीं पीछे जुड़े, नहीं खड़े जुड़े, हैं। नहीं जुड़े। नहीं जुड़े क्या एक पता सर हेडफोन लगाए पीछे खड़े हूँ। वो स्कूल नहीं घर आ है। हाँ, सर का कोई भरोसा थोड़ी ना है। अभिनव खड़े सर है। होंगे लगा के। अभिनव सर है। सुनेंगे सर, सुन रहे होंगे। सुनते वार्तालाप करते हैं लोग। शांत हो गए सब। आप सब अपने आप को म्यूट कर लिए सर का नाम सुनते ही। मैं नहीं किया। हेलो, ये रितेश कौन है? अंकुश, अंकुश, हाँ हाँ तेरे में मैसेज नहीं जा पा रहा। ना है। जय, जय बोल बोल बोल। पहले जाके नहा फिर आएगा तेरे पास मैसेज। अबे नहा लिया हूँ। रितेश का कौन है? क्या? रितेश को रितेश टीवी ना कुमार चालू मौर्य करना, है। टीवी ना से बंद करना टीवी। सबके सब म्यूट हो गए। नमक बंद कर लिए, हम भी बंद कर लेते हैं। कर ही लो तो ज्यादा अच्छा। हेलो क्या बोल रहा है? हेलो, मार दूंगी शायद। मैं कौन हेलो, सर कहाँ गए यार? हेलो, आ गए सर, आ गए सर। हाँ बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, पेरेंट्स आ गए थे, ठीक है, इस वजह से हो गया था। आप लोग लाइव रहिए और आप लोग अटेंड करिए, ठीक है। अब फिर से अपन पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ा था अपन ने रेक्टेंगल के बारे में।
तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, जल्दी से समझ लीजिए, ठीक है। और आपकी जो क्लास थी 9:20 से 10 थी, ये क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। अब आपका जो है टाइमिंग सेकंड क्लास 10:10 से रहेगी, लेकिन उसके पहले हम उसको समझा देते हैं, आपका वीडियो समझ लेंगे। सर आवाज स्लो आ रही है। सर आवाज कट रही है। सर आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? सर अभी आती बीच बीच में कट जाती है। हेलो, अब ठीक आ रही है बेटा? वॉइस ठीक आ रही है? सर किसी ने अपने यहाँ की टीवी ऑन ए बेटा म्यूट करो अपने आप को, टीवी ऑन किया है। माइक बंद करिए सर ओम किया है, सर ओम किया है। सभी लोग। चलिए देखिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल कैसे होते हैं? अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये 3 है तो 3 होता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स लाइन विच नेवर मीट ईच अदर, ठीक है, इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइन, ऐसी लाइन जो होती है पैरेलल, जैसे ये लाइन और ये लाइन कभी मैच नहीं करेगी। तो ये वाली साइड अपोजिट भी है और ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये भी दोनों साइड क्या है? पैरेलल हैं, ठीक है। ये अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडिडेट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नंबर 3, डायगोनल होते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड द डायगोनल। तो ये दो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल में, इसको अपन डायगोनल बोलते हैं। तो दो डायगोनल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, तो लिखेंगे डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। ये हो गई, ठीक है, ये हो गई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। डायगोनल चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब एक दूसरे को जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर ये वाला 5 सेंटीमीटर का है तो ये दूसरा इसको काटेगा, तो ये 5, ये 10 का था तो ये 5 हुआ, 5 हुआ, ठीक है। और अगर ये 12 का था तो ये 6 हुआ, 6 हुआ। बात समझ में आ गई? इसको बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल? फर्स्ट प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ओके। ये प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद सर मतलब कीजिए। हाँ बेटा, यस सर हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड, रख दो सेकंड प्रॉपर्टी, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर का पहले फिगर बनाते हैं। स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है, ठीक है। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। दिस स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड ए रेक्टेंगल। बात समझिएगा क्यों, मैं अभी इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। हियर ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इसमें भी पैरेलल होते हैं, इसको भी अगर आप बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हुई, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी। इसमें डायगोनल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, लिख लीजिए सभी लोग। लिखिए सर, लिख लिया सबने? लिखिए सर। ठीक है, यस सर। और इसमें क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी डायगोनल सर अभी नहीं लिखे। शुभम माइक बंद कर ले। और इसमें एक चीज और होती है। जबल हेलो हेलो हेलो, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें जो डायगोनल्स होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब जब ये कटेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये 4 प्रॉपर्टी आपके बुक में लिखी हुई है, समझ लीजिए। मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है बेटा, कैन आई क्लियर इट? कैन आई क्लियर इट? यस सर। यस सर। हाँ, यस नो सर, नो सर। इसको समझते जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो सबको मालूम होता है, ऑल साइड्स इक्वल है, बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पैरेलल क्यों है, आपको फिगर के द्वारा बताया गया है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर एक 10 का है तो वो डिवाइड होगा तो 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पैरेललोग्राम की। PARALLELO, पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम देखिए, इसमें क्या होता है, एक ऐसा फिगर होता है, इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अपोजिट साइड्स ये पैरेलल होती हैं। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, अगर ये 6 है और ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, देखिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, दूसरा, पहली प्रॉपर्टी हो गई अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इसके डायगोनल जो होते हैं, ये डायगोनल हो गया, ये दोनों, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल। ठीक है, पैरेललोग्राम, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो अपोजिट एंगल, अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का होगा। अगर ये 120 का है तो ये भी 120 का होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई इसकी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी हो गई डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर। इसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर ये 10 है तो 5 हो जाएगा, अगर ये 16 है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो कटते हैं, ये इसका जो मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों डायगोनल्स का, वो एक मिड पॉइंट पे होता है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल।
अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इसके इक्वल होते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट वन अनदर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो सर मतलब कीजिए। चलिए लिख लीजिएगा, बुक में अवेलेबल है। कौन कौन बोल रहा है बेटा ये? हु इज दिस गर्ल? हैं? कौन है ये? बताइए बेटा। हेलो कीर्ति, कौन है? आराध्या, हेलो हेलो, सर यस सर। आराध्या है? आपकी बुक में अवेलेबल है पेज नंबर 56, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आई एम टेलिंग टू यू, आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर यू। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं उसको फिगर के द्वारा, ठीक है। ये बुक में अवेलेबल है, अगर आपको नहीं लिख पाए तो लिख लीजिएगा, ठीक है। हम बात करेंगे अब रोम्बस की। रोम्बस, ठीक है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस कैसा फिगर होता है? देखिए, रोम्बस इज ए फिगर, जैसे मान लीजिए ये आपका रोम्बस है, रोम्बस भी स्क्वायर जैसा होता है। ऑल साइड्स इक्वल, 6 6 6 6, तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं ये दोनों, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट प्रॉपर्टी रोम्बस, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। थर्ड प्रॉपर्टी, इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और इसको डायगोनल बताते हैं। डायगोनल जो इसके होते हैं, भाई डेटा हो गई। all sides are equal, opposite sides are equal and parallel, diagonal bisect each other at 90 डिग्री। इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है बेटा। ये हो गई रोम्बस की प्रॉपर्टी। कैन आई क्लियर इट? हेलो, ऑल ऑफ यू ज्वाइन। यस सर। हाँ, हेलो। हेलो हेलो हेलो, यस सर। ओके। लास्ट प्रॉपर्टी काइट की बताते हैं, काइट क्या होता है, ठीक है। काइट कैसा फिगर होता है बेटा? देखिए, ठीक है, ये वाली साइड्स, ठीक है,
और ये वाली साइड, ये फर्स्ट डायगोनल होगा और ये बेटा माइक बंद करो, ये सेकंड डायगोनल होगा। ठीक है, ये काइट होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका होगा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आर, इसका दिस इज द फर्स्ट डायगोनल। इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, आप लोगों को देखने से ही पता चल रहा है। देखिए ये कितना लॉन्ग है और ये कितना शॉर्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे? पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर अनइक्वल। ठीक है, दूसरा, इसके जो डायगोनल्स होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसमें से एक डायगोनल ही बाइसेक्ट होता है। ठीक है, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, द डायगोनल्स आर perpendicular to one another. ठीक है, the diagonals are perpendicular to one another. Third property, what is the third property of rhombus? Third property of rhombus are one of the diagonals बाइसेक्ट द अदर। इसमें से एक ही डायगोनल जो होता है बाइसेक्ट होता है। अब देखिए, अगर ये 10 का होगा तो यहां से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन ये जो था, ये जो 10 था, मान लीजिए ये 24 सेंटीमीटर था, तो 24 सेंटीमीटर वाला ये लॉन्ग वाला पूरे इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा, ये वाला जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ये 5 हुआ और ये 5 हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। ठीक है, यहां लिखेंगे वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। इसमें से एक डायगोनल दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई काइट्स की। ठीक है बेटा, सब लोग लिख लीजिए। अब इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होगी? क्वाड्रिलेटरल विथ एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। टू पेयर्स ऑफ, जो दो पेयर्स होते हैं कंसेक्यूटिव, जैसे ये फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, ये फर्स्ट पेयर हुआ तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये इसका सेकंड पेयर हुआ तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो इसमें दो पेयर होते हैं कंसेक्यूटिव पेयर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एक ये और एक ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अ क्वाड्रिलेटरल with exactly two pairs of equal consecutive sides। ठीक है, a quadrilateral with exactly two pairs of equal consecutive sides, this is called the kite। ठीक है बेटा, तो अपन ने पूरी प्रॉपर्टी पढ़ ली क्वाड्रिलेटरल की। सब लोगों को राइट एंड लर्न करना है फेयर कॉपी में बिफोर स्टार्टिंग द थर्ड चैप्टर। नाउ योर इंग्लिश क्लासेस विल बी कंटिन्यू। ठीक है, आपकी इंग्लिश क्लास कंटिन्यू होगी। चलिए देखते हैं क्या। ऑल ऑफ यू हैव रिटन, सबने लिख लिया?